السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اٹارنی جنرل فار انڈیا آر وینکٹ رامنی نے اپنی شریک حیات کے ساتھ تلنگانہ جھارکھنڈ کے گورنر اور پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر سی پی رادھا کرشنن سے راج بھون حیدرآباد میں ملاقات کی۔ بھینسہ کے کسان گلی میں واقع پرائمری ویٹرنری سینٹر پر ویٹرنری ڈاکٹر جی وٹھل کی قیادت میں ورلڈ زونوسس ڈے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس دوران عوام میں شعور بیدار کرتے ہوئے 68 پالتو کتوں اور 5 بلیوں میں ریبس کے بیماری کے خاتمے کے لیے ٹیکہ اندازی کی گئی ہے۔ اس پروگرام میں ایم ایل اے پوار رامورا پٹیل، سابقہ ایم پی پی عبدالرزاق، سابقہ بلدیہ چیئرمین بی گنگادھر دتو ملیش کے علاوہ محکمہ ویٹرنری کا عملہ، موضع پولسی ویٹرنری ڈاکٹر سروتم، ویٹرنری اسسٹنٹ الیاس محمد اسماعیل کشن و دیگر موجود تھے۔ వైస్ చైర్మన్ గంగాధర్ గారు, అదేవిధంగా ఇక్కడ గల్లీ సంఘం అధ్యక్షులు రాజదీప్ గారు, మాజీ ఎంపీపీ రజాక్ గారు, మా పార్టీ కార్యకర్తలు మల్లేష్ గారు, అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। మన పశువుల నుంచి ఏదైతే మనకు వ్యాధులు వస్తాయి, ఆ వ్యాధులు రాకుండా టీబీ అనుకోండి, ఇంకా ఏదైనా వ్యాధులు అనుకోండి రావద్దని ఒక వ్యాక్సిన్ ప్రతి 5 జూలై టు 6 జూలై شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے سوپور علاقے میں دوپہر بچاؤ آپریشن دوسرے دن بھی جاری رہا اور 2 نوجوان نالے میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ ایک اہلکار نے خبررساں ایجنسی کو بتایا کہ ایک اور نوجوان پوہرو نالہ سوپور میں ڈوب گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عمر حمید ولد ابو حمید ڈارسا کے نصیر آباد سوپور نہاتے ہوئے نالے میں ڈوب گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے کے فوراً بعد ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا تھا اور اب اسے بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ خوب جای یکی تارا اخبار وال خوش زیاد hoş مویدا açın bana sinifol kyon bozdas yedi çiğit vargasa şu begar bu man boğaz askaba boğaz sınaga ki ekirdi insan Şezana جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کے مدرگم علاقے میں جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بتایا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی ایک ٹیم نے خاص اطلاع پر مدرگم میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ افسر نے مزید کہا ہے کہ جیسے ہی مشترکہ ٹیم مشتبہ علاقے کے قریب پہنچی، چھپے ہوئے عسکریت پسندوں نے مشترکہ پارٹی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں فائرنگ کا مختصر تبادلہ ہوا۔ نظام آباد قلعہ روڈ اور بودھن روڈ پر ہیوی وہیکلز اور آر ٹی سی بسوں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے محکمہ آر ٹی سی اور ٹریفک پولیس عہدیداروں کے ہمراہ کانگریس قائدین کے اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ قلعہ روڈ کے مصروف ترین شاہراہ پر جہاں کئی ایک تعلیمی ادارے واقع ہیں، ہیوی وہیکلز اور بسوں کی مسلسل آمد و رفت کے باعث حادثات کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ تاحال اس سڑک پر کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں اور ان حادثات میں کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس علاقے سے ہیوی وہیکلز اور بسوں کے باعث گنجان آبادی والے علاقے سے گزرنے والی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ మన లోకల్ డిపో నుంచి ఉండే కదా, బోధన్ డిపో నుంచి నిజామాబాద్, నిజామాబాద్ డిపో నుంచి బోధన్ ఉంది కదా, బోధన్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఆపి అక్కడికి వెళ్ళి రిటర్న్ పోవాలి। مرکزی وزراء کے ساتھ آفیسروں، ارکان پارلیمنٹ، ریاستی وزراء سے ملاقات، ریاست کی وجہ سے منصوبوں اور فنڈز پر بات چیت، وزیر اعظم کے ساتھ مل کر التجا کی گئی۔ یہ یقینی طور پر ریاست کی فوری ضروریات ہیں۔ سابق ایم ایل اے کا دورہ جس نے لاقانونیت اور انارکی کے درمیان اریتھیوری اور پالناڈو کو تباہ کیا ہے اور آخرکار پانڈی جیل میں ہے۔ انتخابی نتائج کے بعد سابق وزیر اعلی کا پہلا دورہ نیلور ڈسٹرکٹ جیل کا تھا۔ ریاستی تعلیم، آئی ٹی اور الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں موجودہ آئی ٹی اور الیکٹرانکس کمپنیوں کے ساتھ آنے والے نئے صنعت کاروں کے درمیان اعتماد بڑھانے کے لیے اقدامات کریں۔
इंदावली में रिहाइशगाह पर IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के महकमों की मौजूदा सूरत हाल और नई सनतों के क़याम के इम्कानात का जायजा लिया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि रियासत में नई IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सनतों को राग़िब करने के लिए बेहतर पॉलिसियों के साथ नई IT पॉलिसी लाई जाएगी और इस मकसद के लिए सरमायाकार दोस्त मंसूबे बनाए जाएं। MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की देही तरक्की से जुड़ी है और इसके लिए देही इलाकों में ट्रांसपोर्ट की सहूलत को बेहतर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने गाड़ा और देही मंडल में महकमे पंचायत राज के तहत कामों का जायजा इजलास मुनक़िद किया। MLA गोंडू शंकर ने वाज़ेह किया कि हल्के में महकमे पंचायती राज के तहत सड़कों और निकासियाब के काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే గారు అడిగిన వెంటనే వారికి డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన పనులు ఏవైతే మనం చేపట్టడం జరిగిందో వాటి గురించి పూర్తిగా వారికి విశదీకరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే పనులు ఆగిపోయి కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల ఆర్థిక పరంగా కానివ్వండి లేదా వేరే టెక్నికల్గా కానీ ఎక్కడైతే ఇబ్బందులు అయితే తలెత్తున్నాయో వాటిని పరిష్కరించడానికి కూడా వారికి కొన్ని సూచనలు చేస్తే వారు వెంటనే ఈరోజు పంచాయతీ రాజ్ పైన పూర్తిగా రివ్యూ చేసుకున్నాం. ఎస్సీ పంచాయతీ రాజ్ ఆఫీస్లో ఎస్సీ గారి సమక్షంలో అలాగే ఈఈస్ అలాగే డిఈస్ కన్సర్న్ డిఈస్ అందరూ కూడా శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. కొన్ని గ్రాంట్స్ ఆగిపోయి దానిపైన కూడా చర్చించాం. ఈఎన్సీ గారితో కూడా మాట్లాడాం. MLA गोंडू शंकर ने जानवरों से होने वाली बीमारियों के बारे में बेदारी पैदा करने और पालतू जानवरों की देखभाल करने का मशवरा दिया है। वो महकमे हैवानात की जानिब से आलमी यौम ज़ोनोस के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ज़ोनोसिस डे हर साल मनाया जाता है जिसका मकसद ज़ोनोटिक बीमारियों के इंसानों और जानवरों पर असरात के बारे में आगाही पैदा करना है। వాటిపై కూలంకషంగా వివరించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి అవగాహన కోసం ఈరోజు ఈ బ్రోచర్ని విడుదల చేయడం జరిగింది. దీన్ని అందరూ కూడా చదివి ఏదైతే మనకి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయో ప్రాణాంతక వ్యాధులు కూడా ఉన్నాయి. ఇలాంటివన్నీ కూడా రాకుండా ఉండాలంటే ముందుగానే మనం ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకోవాలి. అలాగే ఈ సందర్భంగా ఈరోజు ఈ ర్యాబిస్ టీకా కూడా ఉచితంగా సప్లై చేస్తుంది ప్రభుత్వం. దీన్ని ఒక వారం రోజుల పాటు వారోత్సవం లాగా దీన్ని జరిపిస్తూ ఈ టీకా ప్రతి ఒక్క सुनील जिम्पल ने इन मुकामात का दौरा किया जहां अमरनाथ यात्री ठहरे हुए थे और बहुत से यात्रियों से मुलाकात की, बातचीत की। जम्मू कश्मीर की हुकूमत के रजिस्ट्रेशन के इंतजाम, भी सहूलियात, सर्टिफिकेट्स, अद्वियात, लंगर इंतजाम के बारे में दरियाफ्त किया। जिम्पल ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि आज तक 1,50,000 ज़ायरीन मुक़द्दस ग़ार की ज़ियारत कर चुके हैं। रोज के कितने निकल रहे हैं आपके? 500। नहीं अरेंजमेंट मैंने देखा यहाँ पे बड़ा अच्छा व्यवस्था की है जो है और ये डॉक्टर डायरेक्टर हेल्थ की तरफ है। क्या नाम है? मसनवी आज़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ने बेरवा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बेरवा में खसूसी तौर पर मासूर शहरियों के लिए दिन भर कैंप का इनेकाद किया। अलिमको ने फ़ायदा उठाने वालों के दरमियान समात की इमदाद, ट्राईसाइकिलें, व्हील चेयर और दीगर मसनवी सामान तकसीम की एक मुश्तरका कोशिश में महकमे समाजी बहबूद बेरवा कैंप का मकसद रसाई को हमवार करना और खसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद को बाइख्तियार बनाना था। मैं कनिका मेहता, जूनियर मैनेजर फ्रॉम अलिमको, और यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसा शिविर लगाया गया है क्योंकि जो लास्ट ईयर असेसमेंट हुआ था यहाँ पे कुछ 6 ब्लॉक्स हैं ऐसे जहाँ पे ये असेसमेंट किया गया था अक्टूबर के महीने में। तो आज जो है उनका सबका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे मोटराइज ट्राईसाइकिल है, बैटरी वाला ट्राईसाइकिल है, तो और इसके साथ जैसे और भी हमारे प्रोडक्ट्स है, हेयरिंग एड्स है, सुगम्या केन है, जो विजुअल इम्पेयर्ड डिवाइसेस हैं, असिस्टेड डिवाइसेस हैं,
उन सब का आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जो भी बेनिफिशरीज असेसमेंट के दौरान आए थे उनका आज यहाँ पे हम फिर उनको बुलाया गया है और उनका बेनिफिशरीज का प्रोडक्ट्स जो उनको असेस किए गए थे वो आज उनका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आज का ब्लॉक है यहाँ पे तो 118 का है, और अदरवाइज़ जो अगर हम चारों ब्लॉक्स की बात करें जो 3 तारीख से लेके आज तक जो चल रहा है वो पूरा 306 का है। लिम्को से आती है, वो हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। इनफैक्ट कि हमारे जो ये यूट्यूब के ऊपर भी सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दी गई है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे चलाना है, कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, वो सब बताया गया है। हमें जो असेसमेंट किया गया था वो 6 ब्लॉक्स में किया गया था, तो उनको 4 दिनों में हमने डिवाइड किया था। जो ब्लॉक्स है कुछ मर्ज हो गए थे, तो जैसे कि खान साहिब में किया था 3 तारीख को, 4 तारीख को बडगाम में किया था, और कल 5 में शडूरा और चारी शरीफ में किया गया, और आज पीरवा, खग और मागम इन 3 ब्लॉक्स का किया गया है। टोटल मिला करके ये सारे ब्लॉक्स। 2 महकमों की कहानी कि वो बेरवा में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में कैसे नाकाम रहे। रावतपुरा से सेल तक 1 किलोमीटर का लिंक रोड खस्ता हाल, मुकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। वसत कश्मीर के बडगाम में पोटा सेल इलाके के मकीनों ने जिले इंतजामिया बडगाम के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मामले को उठाया लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। कश्मीर में एहतजाज ही हुकाम की तवज्जो मबजूल कराने का वाहिद रास्ता है। एक मुजाहिरीन ने नामानिगार को बताया कि अगर खस्ता हाल सड़कों को मैक्डमाइज नहीं किया गया तो वो R&B डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज को तेज करेंगे। ये जो हमारा लिंक रोड यहाँ से बह रहा है सेल से जाके आगे, ये जो यहाँ तोस्मेदान, स्पेशली जहाँ तोस्मेदान से बहुत सारे रास्ते पड़ते हैं, मेनली जो ये रास्ता है तकरीबन ये जो आधा किलोमीटर है, ये बहुत डेडनेस में है, बहुत हर किसी मुश्किलात का ये सामना कर रहा है इस वक्त। चाहे देखिए, देख सकते हो आप पानी कैसे बह रहे हैं यहाँ से, गाड़ियों को बहुत सारे मुश्किलात आ रहे, दरपेश में आ रहे हैं, बहुत सारे मुश्किलात हमारे यहाँ हो रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट के आला हुकाम से हमारी यही मोदबाना गुजारिश है कि इसमें थोड़ा बहुत तावन करें ताकि हम भी आगे जाके इनसे मोदबाना अपील करने जा रहे हैं, ताकि आगे हम जाके हमारे यहाँ भी बच्चों का गुजर रहता है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का गुजर रहता है, हर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं स्पेशली इससे पहले भी बताने जा रहा हूँ था आपसे, डिपार्टमेंट ऑफ R&B ने इससे पहले भी डाली थी एक टेंडर, उसकी रिगार्डिंग में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि शायद वो टेंडर लेपस हुई है। बदकिस्मती से मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन से बंदे ये काम करने जा रहे हैं। तो और हमारी गांव वाले तकरीबन 5-8 गांव इससे आगे मुंसलिक है, तो सुनानवी रोड इससे मुंसलिक है, कोई बंदा इस पे काम नहीं कर रहा है ऊपर से, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्पेशली मैं आप हमारे यहाँ मैसर होगी उसके लिए भी, और मोदबाना गुजारिश आला हुकाम से हर किसी कंडीशन से हमारे यहाँ नज़रअंदाज होते जा रहे हैं, ताकि हम जब देखेंगे एट द सेम टाइम हम DC लेवल पे जाएंगे तो हमारे यहाँ वहाँ से भी वही मिलता है कि हम इसे आगे जाके अच्छे से काम करेंगे। लेकिन गदवाल BRS MLA बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वज़ीर आला ने जुबली हिल्स की रिहायशगाह पर पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में मदऊ किया। निजामाबाद के मंडी मंडल के हुदूद में आंध्रा नगर मौजे में खुमारबाजी में मसरूफ 7 अफराद को पुलिस ने धावा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर की हिदायत पर ACP विष्णुमूर्ति की क़ियादत में पुलिस अमला गजेंद्र अनिल नरसन्ना के हमरा खुमारबाजी के अड्डे पर धावा करते हुए 7 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 7 सेलफोन और 24,420 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। SHO नंदीपेट ने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। हर शहरी को डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की ख्वाहिशात पर अमल करना चाहिए। मुशीराबाद हलके में 6 जुलाई को डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 38वीं बरसी पर उमोगड़म दशरथ मादिगा MRPS भोलकपुर डिवीजन के सुदूर हिदायतकारी में इंदिरा नगर बस्ती में और इरा शांता कुमार मुशीराबाद हलका बस्ती सदर रामनगर डिवीजन के तहत MMPS के सीनियर लीडरान गांधी कृष्णा मादिगा और कृष्णा नगर बस्ती में डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे के तहत उन्हें गुलहा क़िदत पेश किया और हलका इंचार्ज गजाला राजशेखर मादिगा व दीगर भी इस दौरान मौजूद थे। साबिक़ नायब वज़ीर आज़म अंजहानी बाबू जगजीवन राम की बरसी पर पार्टी कायदीन बशमुल साबिक़ MLA बालका सुमन, साबिक़ MP राउला चंद्रशेखर रेड्डी, साबिक़ MLC नवाज रेड्डी और दीगर ने BRS के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में शिरकत की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।